Good evening, students of class 6. We will today we will read out. I will read out and will try to explain the lesson Tarot's Reward. Now, before reading out the lesson, this is a story about a thoughtful and loving son. He works hard to fulfill his parents' wishes and get some unexpected help. हमें बचपन से ये सिखाया जाता है और ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है अपने से बड़ों का आदर करना, उनकी आज्ञा का पालन करना एंड शुड हैव अ वेरी काइंड बिहेवियर. Our deportment should be kind towards everyone. This somewhere portrays our character also. It talks about our values. It shows our values. So, and it is a very important aspect of any human life, especially for children. The sincerity, the hard work, the care and the respect for their elders, especially their parents. When a child has got all these qualities and when he works on this track, he gets help and which is unexpected by him even. So even in a society, you will find these kind of children who are very sincere. They obey their parents as well as elders, and you will see that these kind of children always set an example in the society. They are never ever off the track. So this story is something similar to all these characteristics I spoke about. So let's read out and understand what this lesson is trying to tell us. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. All day long he chopped wood in the forest. Though he worked very hard, he earned very little money. The character and this is a Japanese story. So somewhere this story talk about Asian values. So the first paragraph says कि एक जवान लकड़ी काटने वाला जिसका नाम टैरो, जो अपने माता पिता के साथ अकेले पर्वत के पास हिल साइड रहता था और उसका दिन भर का काम था, उसकी दिनचर्या में लकड़ियों को काटना, फॉरेस्ट में जंगल से लकड़ियाँ काट करके लाना, ये उसका काम था और वो बहुत मेहनत से इस काम को करता और उसके एवज में उसे बहुत कम पैसा मिलता था, बहुत कम पैसा कमाता था. This
made him sad, for he was thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. और इस कम कमाई के कारण उसे बहुत दुख होता, क्योंकि वो जो चीज़ अपने माता पिता के लिए करना चाहता था, उस कम कमाई में, उस कम पैसे में वो चीज़ वो पूरा नहीं कर पाता था, उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता था. The second para. One evening, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. It whistled through the cracks of the hut, and everyone felt very cold. Suddenly, Taro's father said, "I wish I had a cup of sake. It would warm me and do my old heart good." एक शाम टारो और उसके माता पिता अपने झोपड़ी में बैठे थे. तभी तेज आंधी आई, और वो जो आंधी की हवा थी, उसके घर में जो छोटे छोटे सुराग थे, वो हवा अंदर, घर के अंदर प्रवेश करने लगी, जिसके कारण सभी लोगों को ठंड लगने लगी. और ठंड ऐसी लगी कि उसके पिताजी ने कहा कि काश मेरे पास एक कप ऑफ सेक. सेक इज़ ए पॉपुलर जापानीज ड्रिंक. मेरे पास एक कप सेक होता, जिसे अगर मैं पी लेता तो कम से कम इस ठंड हवा से मुझे थोड़ी से शरीर को गर्माहट मिलती और मुझे अच्छा लगता. The third para. This made Taro sadder than ever, for the heart-warming drink called sake was very expensive. How do I earn more money? He asked himself. How do I get a little sake of my poor old father? He decided to work harder than before. See how sincere this child was, how sensitive this child was, that he, at every instant, whatever their parents were feeling, he could feel all these things, and was feeling very sorry about it, that he was so helpless that he cannot do anything. He felt so helpless that he was not able to fulfill his parents' demand. Their need, basic need, being old. And when his father said that he wished he had a cup of sake at that moment, when the wind whistled inside the house, टैरो became more sadder. वो और अत्यंत दुखी हो गया कि क्या है ये. उसकी ऐसी हालत है कि वो अपने पिता को एक कप सेक का नहीं दे सकता है. It is an expensive drink. महंगा ड्रिंक है जापान में. अब वो सोचने लगा कि आखिर मैं क्या करूं जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकूं. यह वो अपने आप से प्रश्न करने लगा कि मैं ये थोड़ा सा जो मेरे पिता ने इच्छा जाहिर की सेक पीने की, मेरे गरीब बूढ़े पिता ने, मैं उन तक ये चीज़ को कैसे पहुंचाऊं. और उसने निर्णय लिया मन ही मन कि अब वो और कड़ी मेहनत करेगा, पहले से ज़्यादा कड़ी मेहनत करेगा. नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो jumped out of bed earlier than usual and made his way to the forest. He chopped and cut as the sun climbed, and soon he was so warm that he had to take off his jacket. His mouth was dry
and his face was wet with sweat. My poor old father, he thought, if only he was as warm as I, and with that he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the steak to warm the old man's bones. अगले दिन सुबह टैरो पहले जैसे सुबह उठा करता था उससे वो थोड़ा सा और जल्दी उठा, बिस्तर को छोड़ा और जैसा प्रतिदिन वो पहले भी किया करता था जंगल गया और वहाँ उसने लकड़ी काटी। सूर्य धीरे धीरे चढ़ने लगा, दिन बढ़ने लगा, दिन अपनी ओर अग्रसर होने लगा और धीरे धीरे एटमॉस्फेयर जो है वो वार्म होने लगा। निरंतर लकड़ियों को काटने से और सूर्य के ऊपर चढ़ने से उसे अब थोड़ी गर्मी लगने लगी और उसने अपना जैकेट निकाला। उसका मुंह सूख गया, उसके पूरे चेहरे पे पसीना भर गया और वो सोचने लगा कि मैं अगर थोड़ी और मेहनत करूंगा तो हो सकता है मैं अपने गरीब वृद्ध बूढ़े पिता के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा अर्न कर लूं, जिससे कि मैं उस बूढ़े व्यक्ति के लिए उनकी जो इच्छा थी सेक पीने की वो मैं उन्हें कैसे भी ला करके दे सकूं। ये जो अंदर उसके अंदर जो जज्बा आ रहा था, जिसके कारण वो बार बार अपने आप को गिल्टी महसूस कर रहा था, वो उसे कहीं ना कहीं ये सोच उसे बार बार मजबूर कर रहा था कि वो और मेहनत करे और मेहनत करे और अपने पिता की ख्वाहिश को पूरी कर सके, जिसके कारण वो लगातार लकड़ियां काटता रहा, बाकी दिनों की अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा, ताकि वो कुछ पैसा ज़्यादा कमा सके। Then suddenly Taro stopped chopping. What was that sound he heard? Could it possibly be rushing water? Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. He was thirsty. The axe dropped out of his hand and he ran in the direction of the sound. तभी कुल्हाड़ी चलाते चलाते उसे पानी की आने की आवाज़ सुनाई दी और वो मन ही मन सोचने लगा कि जंगल के इस भाग में तो कभी उसने पानी की ऐसी कोई आवाज़ सुनी नहीं। उसे प्यास लग भी रही थी। उसने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी छोड़ी और जिस तरफ से पानी की आने की आवाज़ आ रही थी वो उस तरफ दौड़ा। Taro saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hand and put it into his lips. Was it water or was it a shake? He tasted it again and again, and always it was delicious shake instead of cold water. अब वो उस जगह पहुंचा जहां पानी की आवाज़ आ रही थी। उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर झरना जो पहाड़ चट्टान के पीछे थी और घुटने के बल नील होकर के उसने जहाँ से पत्थरों के बीच से जो पानी धीरे धीरे निकल रहा था उसने थोड़ा सा पानी अपने हाथ में उठाया और अपने होठों तक लगाया और अपने मन में इसने प्रश्न किया कि क्या वह पानी है, क्या वह पानी था या कि सेक। और वो बार बार उसे स्वाद लेने लगा और उसे
एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस शेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, और ठंडे पानी के बदले में वो तो स्वादिष्ट शेक था। टैरो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विथ हिम एंड हरीड होम। टैरो ने तुरंत अपना घड़ा लाया और उसने उस घड़े में पूरा का पूरा शेक भर लिया और उसे लेकर के वो जल्द से जल्द अपने घर गया। The old man was delighted with the shake. After only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. और उसके पिता ने एक घूंट उस शेक का लिया घड़े से निकाल करके, और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब जो वो ठंड से कांप रहे थे, थोड़ी सी गर्माहट उन्हें महसूस हुई, और अब वो उस खुशी में बीच रूम के बीच फ्लोर पे नाचने लगे खुशी के मारे। That afternoon a neighbor stopped by for a visit. Taro's father politely offered her a cup of the shake. The lady drank it greedily and thanked the old man. Then Taro told her the story of Magic Waterfall. Thanking them for the delicious drink, she left in a hurry. By nightfall, she had spread the story throughout the whole village. और उसी दिन दोपहर में उसके पड़ोस की एक लेडी उनके घर आई घूमने के लिए। तारो के पिता ने, जैसे हम आग्रह करते हैं अपने मेहमानों को, उन्हें शेक का कप दिया और बड़ी लालची ढंग से, लालच के ढंग से उस लेडी ने उस शेक को पी लिया और उसने तारो के पिता को धन्यवाद दिया। और उसके बाद टैरो ने उन्हें वो जादुई झरने के बारे में बताया जहां उसे लगा कि ये पानी है, लेकिन वो पानी के बदले में शेक की धारा बह रही थी। वो वहाँ इस बात को सुन करके वो वहाँ से बड़ी जल्दी भागी और रात होते होते तक उसने ये बात पूरे गांव में फैला दिया। That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the shake. In less than an hour the pitcher was empty. और शाम होते होते जब सारे गांव के लोगों ने इस बात को सुना, धीरे करके पूरा का पूरा झुंड गांव का तारो के घर पहुंच गया और सब उस कहानी को उन्होंने सुना, उस झरने के बारे में, और सब ने उस शेक की चुस्की ली उसके घर में और धीरे धीरे करके घड़ा जो भरा था शेक से वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क even earlier than the morning before. He carried with him the largest pitcher he owed, for he intended first of all to go to the waterfall. When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. They were carrying pitchers, jars, bucket, anything they could find to hold the magic shake. Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. He drank again and then shouted angrily, "Water! Nothing but water." Others also tried, but there was no shake, only cold water. अगले दिन सुबह और सवेरे उठ करके टैरो जंगल की ओर बढ़ा और आज अपने साथ वो बड़ा घड़ा, बाल्टी, सब चीज़ को लेकर के झरने की ओर बढ़ा। वहाँ उसने देखा कि गांव के लोग पहले ही पहुँचे हुए हैं अपना सारा बर्तन लेकर के उस झरने का पानी लेने, उस सेक लेने के लिए। और वहाँ पे लोगों के लिए आश्चर्य की बात ये थी
कि लोग जब पानी को इकट्ठा कर रहे थे उस झरने का, उन्हें तो ये लग रहा था कि सेक का झरना है, और जब उन्होंने उसे उठा करके चखा तो वो नाराज़ हो गए और उन्होंने नाराज़गी में कहा कि ये तो कुछ नहीं, सिर्फ पानी है, पानी के अलावा और कुछ नहीं है। जब एक आदमी ने इस बात को कहा, गांव के एक आदमी ने कहा, तो दूसरे लोगों ने भी उसे टेस्ट करके देखा, लेकिन किसी को भी सेक का स्वाद नहीं आया। सब ठंडे पानी ही को उसे सबको ठंडे पानी का ही स्वाद आया। We have been tricked, shouted the villagers. Where is Taro? Let us drown him in the waterfall. But Taro had been wise enough to slip behind a rock. When he saw how things were going, he was nowhere to be found. ये सारा का सारा नज़ारा तारो देख रहा था। अब लोग बाग कहने लगे कि टारो ने उन्हें बेवकूफ़ बनाया है और वो उसे ढूंढने लगे, लेकिन टारो छुप करके ये देख रहा था और वो जा करके पत्थरों के बीच छिप गया। लोगों को वो कहीं से भी, किसी को भी तारो नज़र नहीं आया जब उसे खोजा गया। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटेड, द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन। Taro came out from the hiding place. Was it true? He wondered. Was the sake a dream? Once more he caught a little liquid in his hand and put it into lips. It was the same fine sake. To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious sake. To everyone else, it gave only cold water. धीरे धीरे गांव वाले बुदबुदाते हुए गुस्से में वहाँ से उदास होकर के चले गए। तारो वहाँ से जो छुपा हुआ था उस जगह से वो वापस निकला और वो मन ही मन सोचने लगा कि क्या ये सही है कि ये सिर्फ सादा पानी है ठंडा। और वो वापस गया और पानी को, उस झरने वाले पानी को उसने दोबारा हाथ से जब अपने मुंह में लिया तो उसे तो स्वाद दोबारा उस सेक का ही आया। अब उसने सोचा ये क्या जादुई झरना है जिसमें इतना स्वादिष्ट सेक का मिल रहा है, तो फिर दूसरे लोगों को सिर्फ पानी ही क्यों मिला। The story of Taro and his magic waterfall reached the Emperor of Japan. He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro. This said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. अब धीरे धीरे ये कहानी जादुई झरने की जापान के राजा के पास के कानों तक पहुंची। उसने अपने आदमियों को भेजा उस जवान लकड़ी काटने वाले के पास और उन्होंने 20 सोने के टुकड़ों से नवाजा, उसे रिवॉर्ड दिया। किस लिए? क्योंकि वो बहुत ही अच्छा और दयालु था और उन्होंने अपने शहर के सबसे सुंदर और सबसे अच्छा जो झरना था उसका नाम टैरो रखा। और ये इसलिए रखा टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर द चिल्ड्रन। ये रिवार्ड राजा ने इसलिए दिया क्योंकि वो बहुत ही सिंसियर बच्चा था जो अपने माँ बाप के लिए अपने जीवन को पूरी तरह से डेडिकेट किया हुआ था। उनकी खुशी के लिए वो सारा काम कर रहा था। और राजा के कान तक जब ये बात पहुंची कि ही वॉज सच ए ओबीडियंट सन, सच ए काइंड मैन, that when he tasted that sake, he did not hide it from anyone. In fact, he was so kind and so plain hearted that he told every
everyone about that sake of that the waterfall. So a king can judge all these things, and he knew that the child was a very good child, very obedient child, very sincere child. And just to set an example for the other children of his country, so that other children will also honor their parents, obey their parents. एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण रखने के लिए, ताकि राजा के जो अपने देश के और भी बच्चे हैं वो तारों के समान अपने माता पिता का आदर करें, उनका आज्ञा माने, be kind to their parents as they get old. They need someone to help them. और ये एक बहुत ही सत्य बात है कि हमारे माता पिता जब हम छोटे होते हैं तो हमें चलना, बोलना, जिंदगी में हम जो कुछ भी बनते हैं उनकी उंगलियां पकड़ करके बनते हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि जब वो बूढ़े हो जाएं, वृद्ध हो जाएं, जब उनमें अब पहले जैसी शक्ति ना रहे, तब हम उनका सहारा बने। और इसी उदाहरण को रखने के लिए और बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, and to encourage them, the king rewarded Taro with gold to set an example. So children, I think we have finished this chapter, and in the next video I will be carrying out the question and answers of this chapter. Thank you.